Hello everyone, welcome to Gurukul Education. I am Preeti Tiwari and today's topic of discussion is epistasis. So friend, before going to the actual topic of epistasis, we need to revise the Mendel postulations. What he postulates in their study of inheritance. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें मेंडल के कुछ पोस्टुलेशंस को ध्यान रखना है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी सी दैट हाउ एपिस्टेसिस इज different from the Mendelian genetics. So, what are these postulations? So, first of all, first postulation was the individual phenotype is controlled by the single gene. मेंडेलियन जेनेटिक्स में मेंडल ने कहा था कि सिंगल फिनोटाइप सिंगल कैरेक्टर एक सिंगल जीन से गवर्न होता है और रेगुलेट होता है जिसे उन्होंने यूनिट बोला था. सो द जीन which govern a single phenotype is called unit. Different genes control different character. Second postulation था कि different genes जो होते हैं वो different character को govern करते हैं. Means कि different character के लिए हमारे पास different genes होंगे and that is the reason Mendel has chosen 7 characters which governed by different genes. और उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो different genes हैं ये एक दूसरे के expression में phenotypic expression में और genotypic expression में interfere नहीं करते हैं. But that time Mendel was not aware of different type of interference which was studied later. uh, which was studied later. In fact, what happened? The single observable characteristic are almost always under the influence of multiple genes. तो सबसे पहले कि क्या देखा गया कि जो सिंगल कैरेक्टर होते हैं वो एक से नहीं बल्कि एक से ज़्यादा जीन से गवर्न होते हैं या उनके इन्फ्लुएंस में अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये F2 जनरेशन की फिनोटिपिक टेबल है और फिनोटिपिक और जीनोटिपिक टेबल है. इस टेबल में हम क्या देखते हैं? These are the phenotypic ratio, that is 9:3:3:1. और यहाँ पे हम देखते हैं these are the genotype which govern for a different phenotype. यहाँ पे हम देखते हैं कि कैपिटल R और स्मॉल r. इट मीन्स जो R जीन है ये गवर्न करता है सीड के शेप को. whether it is round or wrinkled is governed by R gene. If it is present in dominant form, that it is responsible for dominant character, and if it is present in recessive form, it shows its recessive character, right? But it doesn't interfere with the seed color, right? तो आर जीन जो है वो शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इसलिए इसमें कलर में कोई इंटरफेरेंस इसका हमें देखने के लिए नहीं मिलता है. सीड कलर जो है वो डिफरेंट जीन जो कि वाई है उससे गवर्न होता है. तो मेंडल ने ये स्टडी की अपने जेनेटिक इनहेरिटेंस पैटर्न में और अपने एक्सपेरिमेंट में कि डिफरेंट कैरेक्टर एक सिंगल जीन से गवर्न होते हैं और उनका एक दूसरे पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है. और डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये फिनोटिपिक रेशियो में मिलता है 9:3:1. नाउ मूविंग टू द एक्चुअल टॉपिक एपिस्टेसिस. अब एपिस्टेसिस जो है वो एक डेविएशन है मेंडेलियन जेनेटिक्स का. सो द एपिस्टेसिस इज अ फिनोमिना or genetic you can say genetic result which is totally deviate from Mendel genetics. So what definition says? In epistasis the interaction between genes is antagonistic, means opposite. Interaction between genes is opposite such that one gene mask or interfere with the expression of another. It means ये definition हमें कहती है कि epistasis में जो genes का interaction होता है वो interaction काफी
एंटागोनिस्टिक होता है और यहाँ पर एक जीन जो है दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को इंटरफेयर करते हैं या मास्क करते हैं, उन्हें छुपा देते हैं, उनका एक्सप्रेशन देखने के लिए नहीं मिलता। तो यहाँ पे दो तरीके के जीन होते हैं, लाइक वन जीन विच मार्क्स टू द अदर जीन कॉल्ड एपिस्टेटिक जीन, उन्हें हम एपिस्टेटिक जीन कहते हैं जो दूसरे के कैरेक्टर को मास्क कर देते हैं। एंड द जीन विच बीइंग मास्क्ड बाय अदर जीन इज कॉल्ड हाइपोस्टैटिक जीन। और एक हाइपोस्टैटिक जीन होते हैं जो कि जिन्हें मास्क किया जाता है या जिनके एक्सप्रेशन हमें देखने के लिए नहीं मिल पाते हैं, दैट इज कॉल्ड hypostatic gene. Now, let's take example to understand what actually epistasis is. So, here I have taken example of pigmentation in mice. So, see the crossing and this figure. It will help you to clear concept of the epistasis. तो इस फिगर में हम देखते हैं we have different gene, different color pigmentation in mice. ये एक डाई हाइब्रिड और हेट्रोजिनस F1 प्रोजिनी है माइस की, जिनके बीच में सेल्फिंग कराई गई है। तो सेल्फिंग कराने के बाद हम क्या देखते हैं, बट सेल्फिंग के पहले जो हमें F1 जनरेशन मिली है, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो सी हेयर, यहाँ पे एक डोमिनेंट, यहाँ पे दो कलर हैं, एक वाइल्ड टाइप कलर है अगोटी which is governed by a capital A gene which is dominating in nature. So the capital A is the dominant gene which is responsible for wild type of color in mice. However, the recessive gene small a when present in recessive form is responsible for black color. But there is no such genes responsible for albino color. So how we got albino mice in this table, right? So here is a different gene, capital C, which is responsible for color in mice. If this capital C is present in recessive form, small c, it produces albino color. So if it is present in small c, this is not able to produce the color in mice. So आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कॉम्प्लेक्स ना लगे, ये काफी सिंपल सी क्रॉसिंग ओवर है, बट जहाँ हमें एपिस्टेसिस देखने के लिए मिलता है, माइस के अंदर दो कलर हैं, अगोटी कलर जो वाइट टाइप है और कैपिटल ए इसको गवर्न करते हैं और स्मॉल ए जो कि ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एक थर्ड जीन है कैपिटल सी जो कि इसके कलर को गवर्न करता है। अगर कैपिटल सी नहीं प्रेजेंट है तो वो ऑटोमेटिकली एल्बिनो कलर में कन्वर्ट हो जाएंगी माइस। तो ये यहाँ पे एक जीन पाथवे होता है जो कि जीन पाथवे के थ्रू ये सारी चीजें गवर्न होती हैं और यहाँ पर ये पिगमेंटेशन के लिए मस्ट होता है। तो कैपिटल सी अगर कैपिटल सी के फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर एक भी कैपिटल सी एलील प्रेजेंट है तो हमें कलर देखने के लिए मिलेगा, और अगर कैपिटल सी अपने रेसेसिव फॉर्म में है तो कलर देखने के लिए नहीं मिलेगा। हम यहाँ चार्ट से समझ सकते हैं। यहाँ पे F1 जनरेशन की हेट्रोजाइगस प्रोजनी के बीच सेल्फिंग के बाद we have the different phenotypes, like हमारे पास अगोटी है, हमारे पास ब्लैक है, हमारे पास एल्बिनो है। तो हमें ये एल्बिनो कहाँ से मिलता है ये हम देखेंगे। आप सारे except from the albino mice, in all the progeny there is one capital C is present। अगर आप इन सारे प्रोजिनीज में देखेंगे तो कैपिटल सी जो कि कलर के रिस्पॉन्सिबल है वो अपने कैपिटल फॉर्म में प्रेजेंट है, मीन्स अपने डोमिनेटिंग फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ चार माइस जो हैं यहाँ पे कैपिटल सी अपने रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है। इट मीन्स
The recessive homozygous P, which is responsible for the pigmentation in mice, is now unable to produce the pigment. So we have albino mice irrespective of capital A, जो कि कैपिटल ए हमारा डोमिनेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डोमिनेंट कलर अगौटी कलर के लिए। लेकिन अगर स्मॉल सी अपने रेसेसिव फॉर्म में है तो ये कैपिटल ए के कैरेक्टर को मास्क कर रहा है, उसे हाइड कर रहा है, उसे इंटरफेयर कर रहा है, जिससे कि हमें वाइल्ड टाइप माइस नहीं मिल पाते। तो इसी फिनोमिना को हम एपिस्टेसिस कहते हैं। नाउ कम टू द phenotypic ratio. So here one more important thing. So capital C here is called epistatic allele, while the capital A is called the hypostatic allele. Now if you look at the phenotypic ratio, it deviates from the general Mendelian phenotypic ratio, that was the 9:3 is to 3:1, but here we got 9:3:4. So friends, आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि एपिस्टेसिस जो है मेंडेलियन जेनेटिक्स का एक डेविएशन है, जहाँ पर एक जीन के एक्सप्रेशन को कुछ और जीन्स जो होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं और उनके वाइल्ड टाइप एक्सप्रेशन को मास्क कर देते हैं अगर वो अपने डोमिनेंट या रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एपिस्टेसिस और भी तरह के होते हैं, लाइक डोमिनेंट रेसेसिव एंड डोमिनेंट रेसेसिव or dominant epistatic recessive epistasis, that will we will discuss in some other video. For now, it is all that about the epistasis. Thank you for watching the video. Hope this video help you in your study. Thank you.